السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، لیکچرر ہسٹری، گورنمنٹ ڈگری کالج، گورنمنٹ گراج ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے سیمسٹر 6 تلنگانہ ہسٹری کا ٹاپک نظام حکمرانوں کے تحت تلنگانہ کی جدیدیت لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ماڈرنائزیشن آف حیدرآباد اسٹیٹ انڈر آصف جاہی ڈائناسٹی، اس کے متعلق ہم کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ تو آئیے، سر اکبر حیدرآبادی جو 1921 میں ریاست کے ریاست حیدرآباد کے وزیر مال تھے، ان کے بیان کے مطابق 1853 میں سالار جنگ اول کے دیوان یا وزیر اعظم کی حیثیت سے تقرر سے پہلے حیدرآباد ریاست کے حالات بہت ہی ابتر تھے، بہت ہی خراب تھے۔ ریاست شدید مالی بحران میں مبتلا تھی۔ بہت عرصے تک عہدیداروں کی تنخواہیں اقساط پر ادا کی جاتی تھیں۔ حکومت روز بروز چلانے کے قابل نہ تھی، یہاں تک کہ نظام اپنے ذاتی خرچ کے لیے کچھ نہ لے سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات یہاں تک کہ گروی رکھ دیے تھے۔ حکومت کا نہ مرکزی خزانہ تھا، نہ کسی طرح کا کوئی کنٹرول، حساب کتاب کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ حکومت کی آمدنی کا خرچ 1/5 حصہ تھا۔ ہر دفتر میں رشوت خوری تھی، افراتفری کا بازار گرم تھا۔ ان حالات میں مغربی تعلیم یافتہ 24 سالہ نوجوان میر تورا ولی خان، جنہیں عام طور پر سالار جنگ اول کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے دیوان اور وزیر اعظم کی حیثیت سے 31 مئی 1853 کو اپنا چارج حاصل کیا اور اپنے وصال 8 فروری 1883 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہیں 3 آصف جاہی سلطنتوں کی ماتحتی میں خدمت انجام دینے کا موقع ملا۔ ایک نصیر الدولہ، دوسرے افضل الدولہ اور تیسرے میر محبوب علی خان۔ انہوں نے 1857 کی بغاوت کے دوران بھی انگریزوں کی مدد کر کے ان کا اعتماد حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ان کی اصلاحات بڑی حد تک نو آبادیاتی مفادات پر اثر ڈالیں، لہٰذا انگریز بھی ان کی اصلاحات کا خیر مقدم کیے۔ 1869 عیسوی سے وہ کمسن لڑکے میر محبوب علی خان کے قائم مقام ریجمنٹ کی حیثیت سے انتظامیہ پر کنٹرول حاصل کیے۔ اس کے بعد اپنی ساری تر توجہ ریاست کی مالی حالات کی طرف کی، جس کے لیے انہوں نے 5 اقدامات اختیار کیے۔ پہلا، 1855 عیسوی میں ٹھیکیداری یا مالگزاری کاشتکاری کی جگہ اجرت والا تعلق دار کلکٹرز کا تقرر کیا۔ دوسرا، ماخوذ سود پر رقم جمع کروانے کی سہولت بڑھا دی گئی تاکہ ریاست کا خرچ کم کر سکے۔ تیسرا، انہوں نے حالی سکہ روپیہ ایجاد کیا۔ شاہی دارالضرب حیدرآباد میں قائم کیا گیا، خانگی دارالضرب کا خاتمہ کیا گیا، اور چوتھا، ریاست کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب رکھنے کے لیے اکاؤنٹنٹ جنرل محاسب کا دفتر قائم کیا۔ پانچواں، بامبے کی نوعیت کا ریت واری نظام اختیار کیا گیا، جو دیوانی کے تحت زمین کے احاطے میں اضافہ کا سبب بنا۔ مختلف قسم کی جاگیریں، نظام یا ٹھیکیداروں پر کنٹرول قائم کیا اور لاکھوں ایکڑ اراضی سے مستفید جو ہو رہے تھے۔ زمینات کا سروے، تصفیہ اور اصلاحات وغیرہ کے نتیجے میں مالیہ کے نظام میں اکثر تبدیلی آئی اور اسے استحکام حاصل ہوا۔ ان کا دوسرا اقدام ریاست میں امن و امان کا فروغ تھا، جس کے لیے انہوں نے حیدرآباد میں محکمہ پولیس کو قائم کیا، جسے محکمہ کوتوالی کہا جاتا تھا۔ اضلاع کے پولیس اسٹیشنوں کو چوکی کہا جاتا تھا۔ ایک پولیس عملہ جسے نظامت کہا جاتا تھا تیار کیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ یا محتمم انسپکٹر امین ریاست میں لا قانونیت کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے منصف اور میر عادل ضلعوں میں مقرر کیے، جو حیدرآباد میں
हाई कोर्ट के मातहत काम करते थे। 1865 ईस्वी में इन्होंने जिलेबंदी निज़ाम को मुतारिफ करवाया, जिसके मुताबिक तमाम रियासत को मसावी अजला में तकसीम कर दिया गया। उजरत वाले कलेक्टर्स, नायब कलेक्टर्स और तहसीलदारों का तकर्रुर किया, जिसके आगे नज़्म नफ्स को इस्तेहकाम हासिल हुआ। इसके लिए उन्होंने माहिर अशखास को हिंदुस्तान के कोने कोने से तलब किया। उन्होंने रियासत में कई मदारिस कायम किए। 1855 ईस्वी में दारुल हाई स्कूल, जिसमें अंग्रेजी को लाजमी मजमून करार दिया गया। 1870 और 1872 में सिटी हाई स्कूल चादर घाट स्कूल कायम किया गया। 1870 ईस्वी में इंजीनियरिंग स्कूल कायम किया गया ताकि दिफा आमे को दरकार तकनीकी अमले को तैयार कर सके। इन मदरसों के नतीजे में मुख्तसर मगर बहुत दानिशमंद अफराद का हैदराबाद शहर में वजूद अमल में आया। इंतज़ामिया सल्तनत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काबिल अशखास के मुख्तलिफ इलाक़ों से इंतखाब किया और रियासत में एक मजबूत जदीद इंतज़ामी निज़ाम की बुनियाद रखी। इसके अलावा सालार जंग अव्वल ने डलहौजी की जदीद स्कीमात मंसूबों से मुतासिर होकर जदीद आमदरफ्त का निज़ाम, रेलवे, सड़क, डाक व तार, टेलीफोन वगैरह इन खिदमात की वजह से ताजिरों और अवाम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम को नकल मुकामी करने में आसानी पैदा हो गई। अगर हम हमलो नकल और मवासिलात की सहूलत का फ़रोग़ का निज़ाम देखेंगे तो जदीद हमलो नकल के ज़राए और मवासिलात की वजह से हिंदुस्तान की समाजी, माशी, इलाक़ाई साख्त में अंग्रेज़ों के तहत आम तौर पर ख़ास तौर पर निज़ाम की हुक्मरानी में ख़ुसूसी तब्दीली आई। हमलो नकल की तरक्की और मौसूलात के ज़राए में फ़रोग़ मुल्क की खुशहाली की तरफ इशारा करता है। रियासत हैदराबाद समंदर से दूर वजूद में आई, न कि एक बंदरगाह ना जहाज़ रानी के काबिल है। फिर भी हमलो नकल के ज़राए मौसूलात जैसे रेलवे, सड़क, डाक, टेलीफोन और टेलीग्राफ वगैरह को ज़बरदस्त फ़रोग़ दिया गया। अगर हम रेलवे का निज़ाम अगर देखेंगे, हमलो नकल का अहम ज़रिया जो अशिया की दरामदात और बरामदात करता है और हैदराबाद को अतनाफ के इलाक़ों से जोड़ता है, वो रेलवेज़ का निज़ाम था। बॉम्बे की सरकार और हैदराबाद का अंग्रेज़ रेसिडेंट शहर हैदराबाद में रेलवे लाइन के क़याम की ज़ोरदार सिफारिश की। फ़ौजी, सियासी और तिजारती फ़रोग़ के लिए ज़रूरी समझा जाने लगा। बाद में हैदराबाद को जनूबी हिंद का बड़ा फ़ौजी मरकज़ बनाने, मशरक़ी और मगरबी साहिलों को रेल के ज़रिए जोड़ने का काम किया। हिंदुस्तान की सरकार ने 29 फरवरी 1864 को बड़े रेलवे लाइन जो मुंबई से मद्रास बज़रिए गुलबर्गा, वाड़ी, रायचूर और दरगोई से होती हुई मद्रास पहुंचती थी, ठीक उसी वक्त और एक रेलवे लाइन गुलबर्गा से हैदराबाद तक डालने का फैसला किया। इसके बाद एक माहिदा अंग्रेजी सरकार और दीवाने हैदराबाद के दरमियान रेलवे लाइन की तामीर के बारे में हुआ, जिसके मुताबिक एक रेलवे लाइन 110 मील लंबी जो वाड़ी से सिकंदराबाद को मिलाती थी, अवाम के लिए 8 अक्टूबर 1874 ईस्वी को खोली गई। रेलवे में इब्तदाई सालों में आमदनी बहुत कम थी, जो खर्च के लिए नाकाफ़ी थी। इसके लिए कोई भी यूरोपियन कंपनी आगे काम के लिए यानी सरमाया लगाने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। रेलवे को कामयाबी के साथ चलाने के लिए जो खसारा उससे बर्दाश्त करने के लिए आसिफ जाही सरकार आगे आई और ऐलान किया कि जो कोई भी रेलवे लाइनों की तामीर में सरमाया लगाएगा, उस सरमाया पर 5% सूद की ज़मानत देंगे और वो निज़ाम गारंटी रेलवे स्टेट के नाम से मशहूर हुआ। इस ऐलान के नतीजे में बरतानिया की खानगी कंपनी सरमाया लगाने के लिए आगे आई। एक माहिदा आला हजरत निज़ाम के दरमियान 1883 ईस्वी में तकमील को पाया, जिसके मुताबिक अगले सालों में मौजूदा रेलवे लाइन वाड़ी से सिकंदराबाद को वरंगल तक तोसी देने और वहां से एक तरफ बिजवाड़ा से जोड़ा गया और दूसरी तरफ वरंगल से चांदा तक जोड़ा गया। बिजवाड़ा से सिकंदराबाद तक रेलवे लाइन 215 मील लंबी हिंदुस्तान के मशरिकी और मगरबी साहिलों को मिलाती थी। वरंगल और चांदा लाइन तकरीबन 60 मील लंबी थी। संगारनी कालिस कोयले की काने तक मिलाई गई और 2 रेलवे लाइनों ने रियासत के हमला नकल के निज़ाम को अक्सर तब्दील करके रख दिया। 1907 ईस्वी में हैदराबाद दक्कन रेलवे स्टेशन, जो आमतौर पर नामपल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है,
आसिफ जाही हुक्मरानों ने तामीर करवाया। इस स्टेशन को नामपल्ली पुकारे जाने की वजह स्टेशन इस वक्त नम और भीगे हुए कीचड़ वाले इलाके में तामीर किया गया था। इसी वजह से नम के माने उर्दू में भीगा और पल्ली के माने जगह, इस तरह नामपल्ली इसका नाम पड़ गया। इसकी तामीर बाग-ए-आमा पब्लिक गार्डन के साथ ही हुई। ये स्टेशन ज्यादातर सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। 1921 में नामपल्ली स्टेशन से पहली मुसाफिर रेल मुतारिफ की गई। दूसरा अहम स्टेशन काचीगोड़ा था। 1916 ईस्वी में आसिफ जाही हुक्मरानों ने इसे तामीर किया था। ये स्टेशन निजाम गारंटी स्टेट रेलवेज का मरकज था। 1950 तक ये बाकी रहा। इस स्टेशन के दरमियान और बाजू के हिस्से को गुंबदों से मज़यन किया गया और मीनारों से जोड़ दिया गया। ये स्टेशन खूती तर्ज यानी अहद वस्ता का यूरोपी तर्ज पर तामीर किया गया था। इसके अलावा हैदराबाद गोदावरी लाइन जो 386 मील लंबी थी, मनमाड़, औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़ और सिकंदराबाद तक जाती थी। अवाम के लिए 1899 ईस्वी में खोल दिया गया। ये लाइन माशी तौर पर इस इलाके की तरक्की और निज़ाम स्टेट रेलवे कंपनी को मजबूत करने में मददगार साबित हुई। पहली जंग अजीम के अख्तिताम तक 3 चौड़ी पटरियां, 352 मील और 3 मीटर गेज पट्टियां, 600 मील को हैदराबाद शहर से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ दिया गया। नई लाइन कोयले की कानों तक जोड़ दी गई। इससे रियासत की समाजी माशी तरक्की हुई। 1930 तक हैदराबाद की सरकार तमाम लाइन्स को अपने कंट्रोल में करके उसका इंतजाम निज़ाम स्टेट रेलवे बोर्ड के सुपर्द कर दी और वो बोर्ड हुकूमत के कंट्रोल में आखिर निज़ाम हफ्तुम यानी मीर उस्मान अली खान के दौर तक रही। अगर हम शाहराहों के बारे में देखेंगे, सड़कों के बारे में देखेंगे, हमलो नकल के ज़रायों में रेलवे की सड़कें अहम और इब्तदाई मुकाम हासिल की। 1868 ईस्वी में पहली सड़कें जो हैदराबाद को शोलापुर, गुलबर्गा, करनूल, मछलीपट्टनम, हनमकोंडा और नागपुर से मिलाती थी। इनमें कुछ बरतानवी ओहदेदार तामीर करवाए ताकि फौज को आसानी हो। 1867 ईस्वी तक पूरी रियासत में सड़कें तामीर करवाए। इसके बाद आसिफ जाही फरमारवाओं ने कई बड़ी सड़कें तामीर करवाई जो है शहर हैदराबाद को अजला से जोड़ती थी। बरतानवी सरकार के सूबों को मिलाते हुए बड़ी सड़कें तामीर की गईं। 1891 में सड़कों को इस्तेमाल बढ़ाकर 1241 मील कर दिया गया, जिससे हुकूमत को 3 लाख खर्चा हुआ। 1901 में इसे बढ़ाकर 1614 मील कर दिया गया, जिसका खर्च 5,50,000 हुआ। 20वीं सदी की इब्तिदा में सड़कों की इस्तेमाल से ज़्यादा और इनकलाबी होने का जिम्मेदार अंदरूनी तौर पर जलने वाला इंजन की ईजाद थी। सड़कों के फैलाव का इस्तेमाल और अहमियत मुख्तसर अरसे में बढ़ने लगी। सड़कें रेलवे के मुकाबले में बेनज़ीर तोहफा समझा जाने लगी। सूबों में सड़कों का इस्तेमाल 1930 के दहे में 3,983 के मुकाबले में बढ़कर 1940 में 5,911 मील हो गया, जो 1,928 मील से ज़्यादा था। सड़कों के फ़वायद को शहरी और देही इलाकों में समझा जाने लगा। देहातों के दरमियान और इलाकों के दरमियान तिजारत की तरक्की का इन्हिसार अच्छी सड़कों पर मुनहसर था। पूरी रियासत में अच्छी सड़कें तामीर की गई। मोटर सवारियों का भी इस्तेमाल और बढ़ गया। 1932 तक शहरों पर गाड़ियां खानगी ज़ाती कंपनियां चलाने लगी। ज़राए हमलो नकल के ज़ाती, खानगी और दूसरे एजेंसियां वक्त के पाबंद थे, जिससे अवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा किराया भी मनमानी वसूल करते थे। इसलिए आसिफ जाही हुक्मरानों ने सड़कों की इजारादारी खुद लेकर इसे 1932 में महकमे रेलवे लाइन के हवाले कर दी। तब से रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों महकमे एक दूसरे की इमदाद से चलाए जा रहे थे, जो अगले सालों में तरक्की का सबूत साबित हुआ। अगर हम फिजाइया के बारे में देखेंगे, हैदराबाद पहली देसी रियासत थी जिसके अपने ज़ाती हवाई अड्डे रियासत थे, जिसका मरकज बेगमपेट था। 1938 के फरमान के मुताबिक दक्कन के हवाई रास्ते आसिफ जाही दौर में शुरू हुए। उसके
यानी एयरपोर्ट बेगमपेट थी। बाद में हवाई रास्तों का निज़ाम स्टेट रेलवे बोर्ड के कंट्रोल में कर दिया गया और 1930 में रेलवेज, 1932 में रोड ट्रांसपोर्ट और 1938 में फिजाइया को हैदराबाद की निज़ाम सरकार स्टेट बोर्ड के तहत कर दिया गया, जो आसिफ जाही हुक्मरानी के खात्मे तक यानी 1948 तक कायम था। डाक, टेलीग्राफ और मवासिलात के अगर बारे में हम देखेंगे, 1869 ईस्वी में जब सालार अव्वल मोहतमीम के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, रियासत में महकमे डाक व तार का क़याम अमल में लाया गया। उससे पहले वो खानगी इदारों के ज़रिए माहदे के ज़रिए चलाया जाता था, जबकि वो हुकूमत के कंट्रोल में आया तो उसकी तंजीम जदीद की गई और बरतानवी हिंदुस्तान में मरबजे नमूने पर तश्कील दिया गया। शहरों और तजारती मराकज़ पर खोले गए। उनकी कारकर्दगी के लिए पोस्ट मास्टर, नायब पोस्ट मास्टर और मातहत अमले का तखर्रुर किया गया। महकमे डाक के सदर को नाजिम कहा जाता था, पोस्ट मास्टर या जनरल भी कहा जाता था। टेलीग्राफ का महकमे डाक वाले इंतज़ाम से चलाते थे। 1866 में पहला डाक टिकट एक आना छापा गया। 1869 ईस्वी में नवाब शाह सवार जंग हैदराबाद के पहले पोस्ट मास्टर जनरल की हैसियत से मुकर्रर हुए और हैदराबाद में पहले डाक टिकट को मुतारिफ करवाया गया। अगर हम टेलीफोन के अगर बारे में देखेंगे, तब टेलीफोन की खिदमत शहर हैदराबाद में 1885 ईस्वी में मुतारिफ करवाई गई। तनसीब का काम बॉम्बे टेलीफोन कंपनी में अंजाम दिया। इसके अख्तिताम तक हुकूमत ने सारा इंतज़ाम किया। 1910 तक टेलीफोन की तनसीब के लिए हिंदुस्तान की सरकार से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी, लेकिन बाद में हिंदुस्तानी रियासतों को इस शर्त पर छूट दी गई कि इब्तिदा में सिर्फ एक ही टेलीफोन एक्सचेंज 16 लाइनों के साथ बारादरी शहर में भी तेज़ रफ्तार मवासिलात के लिए इस्तेमाल सिर्फ सरकार करती थी, लेकिन बाद में इसको अवाम के लिए भी खोल दिया गया। टेलीफोन के राब्ते के लिए तलब में इजाफे की वजह से 2 एक्सचेंज, एक नारायणगुड़ा और दूसरा सिकंदराबाद में कायम किए गए। 1926 और 1927 में बड़ी लाइनें तनसीब बिछाई गई जो हैदराबाद को अजला के सदर मुकाम और रियासत के अहम शहरों से मिलाती थी। 1922 और 45 के दरमियान 10 टेलीफोन एक्सचेंज और 2004 टेलीफोन राब्ते थे। हमलो नकल और मवासिलात के ज़राए जिनका इंतज़ाम खानगी और सरकारी इमदाद से चलता था, रियासत के फ़रोग़ और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किए। अगर हम सनतों के अगर बारे में देखेंगे, तो रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़माम से पहले बड़े पैमाने पर सनती अशिया हैदराबाद में तैयार की जाती थी। जिस वक्त रियासत की आबादी तकरीबन हिंदुस्तान की आबादी का 4% थी, उस वक्त मुल्क में 3% मजदूर, 7% कारखाने और तकरीबन 6% सरमायाकार का मुआवजा मुश्तरका तौर पर अदा किया जाता था। सूती कपड़े, दियासलाई, शराब, कोयला, सीमेंट और दूसरी पैदावार में रियासत का 4% हिस्सा उससे ज़्यादा था। रियासत में मैसर सहूलियात का मखसूस तौर पर इस्तेमाल करते हुए सनती मैदान में जो तरक्की की गई वो काबिल ज़िक्र है। हैदराबाद की सनतों का 3 मरहलों में खाका खींचा जा सकता है। पहला मरहला सर सालार जंग अव्वल के वज़ीर आज़म दीवान बनने से 1857 से शुरू होकर पहली जंग अज़ीम के अख्तिताम यानी 1919 तक का था। दूसरा मरहला दूसरी आलमी जंग से लेकर आसिफ जाही हुकूमत के खात्मे तक हैदराबाद में सनत तरक्की की थी। इन 3 मरहलों की तकसीम इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फंड की बुनियाद बनाकर की गई, जबकि बरतानवी सरकार का निजी का इदारा था। अगर हम पहले मरहले के अगर बारे में देखेंगे, जो 1870 तक 1919 था, सर सालार जंग अव्वल मीर तुराब अली खान असली नाम था, 1853 से 1883 के दीवान के ज़माने से शुरू होता है, जिसमें बड़े पैमाने पर मईशत की साख्त को बेहतर बनाने के इक़दाम किए गए। कि हैदराबाद में सनतों की इब्तिदा का दौर था। बैक वक्त ज़राई इस्लाहात, मालियाती तरक्की, इंतज़ाम के तरक्की कार में फ़रोग़ का मनसूबा बनाया गया। दूसरे समाजी काम जैसे कि जदीद तालीम की तरक्की, बुनियादी ढांचे की साख्त बनाई गई। ख़ास तौर पर हमलो नकल, तिजारत और ज़राअत को तरक्की दी गई। मराठवाड़ा में कपास की पैदावार, तेलंगाना में तेल के बीज की पैदावार के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की कोशिश रही।
आबपाशी को भी इस मरहले में मदद मिली। इसके अलावा हैदराबाद गोदावरी से मुंसलिक रेलवे लाइन 1899 ईस्वी को खोले जाने की वजह से सूत और उससे ताल्लुक़ रखने वाले किनिंग और प्रोगरिंग मिलों को खूब तरक्की हुई। इस दौर में रेशम, कालीन और दूसरी छोटी सनतों को फ़रोग़ हासिल हुआ, जिसके नतीजे में हैदराबाद दक्कन स्पिनिंग और रिंग मिल्स लिमिटेड 1877 ईस्वी में, महबूब शाही गुलबर्गा मिल्स 1884 ईस्वी में और हैदराबाद और औरंगाबाद मिल्स 1888 ईस्वी में कायम हुए। इसके अलावा रेलवे लाइन और वलंगल से सर कोयले की कानों की खोलने की वजह से ज़्यादा कोयले कान में मदद मिली। 1901 तक मुख्तलिफ किस्म के 68 बड़ी सनतें कायम की गईं, जिससे औसत रोज़ाना 10 और उससे ज़्यादा मजदूर को रोज़गार मिलता गया। 1920 और 1921 तक सनतों के क़याम में इजाफा हुआ। ये 121 से बढ़कर 200 तक बढ़ गई और वर्कर्स 24,317 से बढ़कर 32,857 तक हो गए। अगर हम दूसरे मरहले के बारे में देखेंगे, दूसरे मरहले में आसिफ जाही हुकूमतों ने सनतों को इदारा जाती इमदादी फराहम करने का इक़दाम किया। माली और टेक्नोलॉजी की मदद से मुकामी सनतों को छोटे और बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल हुआ। सनती लेबोरेटरी का 1919 में क़याम में आया, जो रिसर्च का काम करती थी। इसके अलावा महकमे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CAI का क़याम 1918 में किया गया। रियासत हैदराबाद की सनती तारीख़ में 1929 साल का अहम है। इस साल रियासत खुद 1 करोड़ रुपए के कार्प्स फंड्स यानी हिस्सेदारी, दस्तावेज़ाती ख़र्च और अक़सात पर ख़र्च की शक्ल में ITF यानी इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फंड कायम की और इस सरमाया को बड़ी सनतों के क़याम पर खर्च किया और घरेलू और छोटी मोटी सनतों को भी फ़रोग़, रिसर्च की अहमियत अफ़ज़ाई की, तलबा को ट्रेनिंग देने, स्कॉलरशिप के ज़रिए और ताजिरों को मदद देने की अशिया की पैदावार के तरीक़े को बेहतर बना सके। ITF रियासत की मुख्तलिफ कंपनियों में कारकुन की हैसियत से काम करने लगी। टेक्नोलॉजी और माली इमदाद के साथ हुकूमत सनती कारीगरियों को मार्केट की सहूलत भी फराहम करने की कोशिश की। इस जानिब पहला इक़दाम सनती नुमाइश का क़याम और इसमें हिस्सेदारी था। हैदराबाद में अशिया की फ़रोख्त का रिवाज 19वीं सदी के वसत तक था। सालार जंग अव्वल के वज़ीर-ए-आज़म के दौर में इसके बाद हुकूमत कई नुमाइशें मुनक़िद करते और हिस्सा लेती थी। 1930 से मुस्तकिल सनती नुमाइश हैदराबाद में मुनक़िद होने लगी, जो आज तक भी चलती रहती है। जामिया उस्मानिया की ग्रेजुएट एसोसिएशन, जो हुकूमत की इमदाद से इस नुमाइंदों को मुनक़िद किए, एक रिसाला मुल्क की सनतें के नाम से जारी किया गया। इसके बाद के सालों में काटेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ने खुद अपना फ़रोख्त का महकमा कायम किया। ये महकमे देही दस्तकारी और शहरी सारिफिन के दरमियान सालिसी का काम अंजाम देने लगे। इस मरहले के दरमियान रेलवेज़ मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी उठाने लगे और निज़ाम स्टेट रेलवे के नाम से पुकारे जाने लगे। इन्होंने मैकेनिकल रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस और शहरी हवाबाजी का महकमा शुरू किया। 1930 के आखिरी हिस्से में बर्क़ की पैदावार यानी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन निज़ाम सागर केनाल से शुरू की गई। बर्क़ी की पैदावार 1938-1939 के दरमियान 20 मिलियन किलोवाट्स की इंतहा को पहुंच गई। 1916-1919 के दरमियान कोयले की पैदावार और सालाना 0.65 मिलियन थी, जो बढ़कर 1936-38 के दरमियान 1 मिलियन टन हो गई। बड़ी सनतों के क़याम में इजाफा हुआ, जो 1921 में 200 थी, 1931 में बढ़कर 387 हो गई। तेल, चावल, आटे की चक्कियाँ, छोटे पैमाने की इंजीनियरिंग वर्कशॉप, बटन के कारखाने, दिया सलाई और बागात के कारखाने में काफ़ी इजाफा हुआ। इमदादी शोबा, मुश्तरका स्टॉक एक्सचेंज कंपनियाँ और 3 कपड़े की मिलें, 2 तंबाकू के कारखाने, 2 शीशे के कारखाने और शक्कर का कारखाना कायम किया गया। तीसरे मरहले में मीर उस्मान अली खान ने सनती पॉलिसी में तब्दीली लाने की भरपूर कोशिश की और मुख्तलिफ कारखाने और कंपनियां कायम करते हुए हैदराबाद को एक जदीद रियासत में तब्दील करने का काम किया। इस तरह ये टॉपिक जो है मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगली बार मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा।
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔